Good morning, students. Today we will read about the scalar and vector quantity. Scalar and vector quantity. Scalar and vector quantity. First of all, know what is the physical quantity. The physical quantity means those quantity which can be measured. Those quantity which can be measured directly or indirectly are called the physical quantities. Means distance, area, volume, force, pressure. These are the physical quantities. Now these physical quantities are divided in the two types. One is scalar and other is a vector. Mean that physical quantities are divided in the two types, scalar quantities and vector quantities. The first of all we will need about the scalar quantity. So what is the scalar quantity? What is the scalar quantity? Those quantity which have only magnitude. Those quantity which have only magnitude are called the scalar quantities. For example, distance, area, volume, pressure, work. These are the speed. These are the examples of the scalar quantity. Again you listen. What is the scalar quantity? Those quantity which have only magnitude. Those quantity which have only magnitude are called the scalar quantity. For example, we can say that distance, area, volume, pressure, speed, etc. These are the examples of the scalar quantities. Now, what is the vector quantity? What is the vector quantities? What is the vector quantity? So those quantities which have magnitude as well as direction, means those quantity which have magnitude as well as डायरेक्शन, मीन्स जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए. तो दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी. Definition: those quantity which have magnitude as well as direction are called the vector quantities. For example, we can say that displacement, velocity, force. These are the examples of the vector quantities. I hope that all of you understood about the scalar and vector. Scalar means those quantity which have only magnitude, and vector means those quantity which have magnitude as well as a direction. In the previous video already we have read about the difference between the distance and displacement. तो वहाँ पे एक पॉइंट बताया गया था बेटा कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी मीन्स डिस्टेंस को मेजर करने के लिए केवल क्या चाहिए हमको, मैग्नीट्यूड. The distance have only magnitude, but displacement has a magnitude as well as a direction. So displacement is a vector quantities. तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं बेटा. नाउ वी विल रीड अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. तो व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन? व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, listen the definition, when an object move on a straight line, when an object move on a straight line and covers equal distance in equal interval of time, covers equal distance in equal interval of time, then it is said to be in uniform motion. If the motion of an object is uniform, if object move in a straight line and covers equal distance in equal interval of time is called the uniform motion. Understood na? So suppose that when a car move on a straight road with the then it is the uniform speed motion. Now when we will draw the graph between distance and time, when we will draw the graph between distance and time, distance and time, this is your time and this is your distance. So for the uniform motion, the distance time graph is
a straight line, is a straight line. When a body move with uniform motion, then the graph between distance and time will be a straight line. When a body travel equal distance in equal interval of time, then it is said to be in the uniform motion. Now we will read about the non-uniform motion. Non-uniform motion. Non-uniform motion. So what is the non-uniform motion? The motion of an object, the motion of an object is said to be non-uniform. Is said to be non-uniform if it covers unequal distance in equal interval of time. Unequal distance in equal interval of time. This is the, for example, we can say that when a car is moving in a traffic road, in a traffic road, motion करे car, so when it will get the space, it will move the fast. When it will go in the less space, it will travel the very slowly. मैं सपोज करते हैं कि पहले 5 सेकेंड में बॉडी 50 मीटर्स ट्रेवल करती है, अगले जब 5 सेकेंड आता है तो उसमें 60 मीटर ट्रेवल कर लेती है. तो इस तरीके से जब देखेंगे कि हमारे क्या है, टाइम तो सेम है लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो दिस टाइप ऑफ मोशन इन्होंने द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्जाम्पल हमने बता दिया कि द कार मूविंग इन अ ट्रैफिक रोड. दीज आर द वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. In this way we can define what is the uniform motion and what is the non-uniform motion. Next topic we are going to start speed. क्या शुरू करते हम लोग हैं, स्पीड शुरू करते हैं. स्पीड, व्हाट इज द स्पीड? तो हमने बात किया था, पहले बताया था कि बॉडी मोशन में कब कहलाएगी. मान लो हमारे पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है. हम कहे थे कोई बॉडी मोशन में कब कहलाएगी? इफ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इफ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी इन द मोशन. यानी कोई बॉडी है वो समय के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज करती है तो बोलेंगे दैट बॉडी इन द मोशन पोजीशन. द बॉडी है, बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड योर रेस्ट पोजीशन. क्या कहें, बॉडी हमारे रेस्ट में है. तो मोशन तो जान चुके हैं, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज सेड टू बी इन द मोशन. अब बात ये होती है चेंज, जैसे हम लोग बॉडी ए की बात करते हैं, ये 2 सेकेंड में ये चला गया यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर. कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर. सेकेंड बॉडी है 3 सेकेंड लिया और यहाँ से यहाँ ट्रेवल करिए कितना, 14 मीटर. तो बात ये दोनों बॉडी इन दिस केस वी कैन से बोथ बॉडी इन द मोशन पोजीशन. दोनों मोशन में, क्योंकि दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है. बट यहाँ पे हमको ये कंपेयर करना हो कि कौन सी बॉडी फास्ट मोशन कर रही है, कौन सी बॉडी फास्ट मोशन कर रही है. तो फास्ट मोशन निकालना, जैसे यहाँ पे है तुम्हारा 10 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पे 40 मीटर है, टाइम डिस्टेंस अधिक ट्रेवल किया बट टाइम भी तो साथ में बढ़ गया. तो इसे यदि हम लोग देखेंगे तो पता नहीं, इस तरह से हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सी बॉडी जो है कि फास्ट मोशन कर रही है. तो इफ़ वी आर टू कंपेयर डैट विच बॉडी इज मूविंग फास्ट, तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि 1 सेकेंड में बॉडी कितना ट्रेवल की. यदि फर्स्ट वाले केस करते हैं 2 सेकेंड में 10 किलोमीटर, तो 1 सेकेंड में 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर. सेकेंड है, यदि हमारे कोई बॉडी है 3 सेकेंड में 14 मीटर, तो 1 सेकेंड में 14/3 करेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा 4 होल 2/3 मीटर. तो इस तरह देखेंगे कि पहली वाली जो बॉडी है 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल कर रही है, दूसरी वाली 1 मीटर 4 होल 2/3 मीटर ट्रेवल कर रही है. तो कह सकते हैं कि बॉडी इज मूविंग फास्टर, बॉडी इज मूविंग फास्टर. तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि हम लोग दो बॉडी मोशन में है, यदि उनको कंपेयर करना है विच बॉडी मूविंग फास्टर, तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड. तो यही जो निकलता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द स्पीड. उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं. नहीं, अब हम फाइनली क्या डिफिनेशन देंगे, व्हाट इज द स्पीड? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्पीड. ये भी कह सकते हैं, या भी कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाई द बॉडी पर यूनिट टाइम यानी कोई बॉडी यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड द स्पीड। यू कैन डिफाइन व्हाट इज द स्पीड। The rate of change of distance is called the speed, and that is we can say that speed is equal to distance upon time. Distance upon time. Speed is equal to distance upon time. So this is your that formula to find the speed. अब बात यहाँ पे आती है इससे रिलेटेड, हम लोग बात करते हैं SI यूनिट की। तो SI यूनिट ऑफ स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, मीटर पर इसको लिख सकते हैं ऐसे भी मीटर पर सेकेंड। द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा यदि और यूनिट देखेंगे ग्रेटर यूनिट तो होता हमारा किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। दीज आर द अदर यूनिट्स ऑफ द स्पीड। और CGS यूनिट की बात करेंगे तो CGS यूनिट हमारा होगा, CGS यूनिट की बात करेंगे तो CGS यूनिट होगा हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। ओके, थैंक यू गाइज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट नेक्स्ट वीडियोज। और होमवर्क, तो all of you have to complete your note till the third portion। यानी हम लोग ने जो पढ़ा है रेस्ट, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर, स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, 3 टॉपिक से रिलेटेड हम लोग नोट कंप्लीट करेंगे। एंड यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इफ एनी डाउट विल बी देयर टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, थैंक यू गाइज।